یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاقی طور کے اوپر شہباز شریف کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے. کبھی ہوا ہی نہیں ہے، آج تک جمہوریت کی تاریخ میں ہوا ہی نہیں ہے کہ ایک جیل سے آدمی اٹھ کے آئے اور پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بن جائے اور پھر اسی نیب کو طلب کر لے. کا چیئرمین رہنا یا نہ رہنا جو ہے وہ وصیت لیڈر آف اپوزیشن ان کا استحقاق ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو ہٹانے سے کوئی ان کو فائدہ حاصل ہوگا، سسٹم کو نقصان پہنچے گا، حالات مزید بگڑیں گے. مجھے لگتا ہے یہ سارا سسٹم ہی نہ کہیں لپیٹا جائے. السلام علیکم، ویری گڈ ایوننگ ٹو آل آف یو. آپ دیکھ رہے ہیں پس پردہ اور میں ہوں نادیہ نقی. آج کل تیاریاں ہیں سعودی ولی عہد ہز ہائنس محمد بن سلمان کی آمد کی، جو کہ پاکستان آ رہے ہیں. سعودی عربیہ ایک بہت بڑی سرمایہ کاری کے لیے بتایا جا رہا ہے، تقریباً $20 ارب کی سرمایہ کاری پاکستان میں کرنے جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب سعودی عرب وزٹ پہ گئے تھے، جس وقت پاکستان کو اشد ضرورت تھی امیڈیٹ ڈالرز کی، تو انہوں نے مختلف ممالک کا دورہ کیا تھا، ان میں سے سعودی عربیہ بھی ایک تھا. جب واپس آئے تھے تو ان کے تمام وزراء نے یعنی کابینہ یہ کہہ رہی تھی کہ بہت بڑی انویسٹمنٹ آنے والی ہے. بہرحال اب یہ مٹیریلائز ہونے کو ہے اور اسی سلسلے میں تیاریاں بھی جاری ہیں. آج کل یہ اسلام آباد میں آف کورس جہاں یہ تیاریاں جاری ہیں، وہاں دوسرا امپورٹنٹ ایشو جو کہ میرا خیال ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ موجودہ حکومت کے دور میں پارلیمنٹ کی جو ورکنگ ہے اس پر کافی سوالیہ نشان اس لیے ہیں کہ اپوزیشن ہو یا پھر ٹریجری بینچز پر بیٹھنے والے ایوان میں ہمارے ارکان پارلیمنٹ، دونوں ایک دوسرے پر الزام بھی لگاتے ہیں. ایک خصوصی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی تاکہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز بہتر طور پر ہو سکیں. لیکن اب معاملہ سینئر صوبائی وزیر جو پنجاب کے تھے عبدالعلیم خان صاحب، نیب میں گرفتاری کے بعد انہوں نے جب رضاکارانہ طور پر اپنا استعفیٰ پیش کیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حکومتی وزراء اب یہ کہتے نہیں تھکتے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب کو بھی مستعفی ہو جانا چاہیے. اب کیا کچھ پیچھے ہو رہا ہے کہ آج تو ہم نے دیکھا کہ خورشید شاہ صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو پارلیمنٹ نہیں چلے گا اور اس کو نہیں چلنے دیا جائے گا اگر کوئی تحریک عدم اعتماد لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے لائی گئی. دوسری طرف ہم نے ایک روز پہلے خواجہ آصف کو بھی یہ کہتے سنا، انہوں نے بھی خبردار کیا ہے حکومت کو کہ اس حوالے سے نہ سوچا جائے کیونکہ پھر پارلیمنٹ جو ہے وہ چلنا ممکن نہیں ہوگا. اور وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کا یہ استحقاق ہے کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں. پرائم منسٹر بھی بارہا اب یہ کہتے ہیں کہ کبھی نہیں ہوا جمہوریت میں ایسے کہ نیب میں جن ریسٹ ہو وہ پروڈکشن آرڈر پر اسمبلی میں آئے بھی. پہلے کہتے تھے کہ شہباز شریف صاحب کو بالکل نہیں بننے دیا جائے گا، پھر بنانا پڑا کیونکہ ظاہر ہے پریشر تھا، تب بھی پارلیمنٹ نہیں چل رہی تھی. اب اگر ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے، آج اس حوالے سے زرداری صاحب نے بھی ایک اجلاس کی صدارت کرنی ہے اور اس میں یہ میٹرز جو ہیں وہ ڈسکس کیے جائیں گے، تو پارلیمنٹ کیسے چلے گا. ان دونوں امور پر آج ہم بات کریں گے. اپنے محترم مہمانوں کا تعارف کراتے چلو. ہمارے ساتھ کراچی میں تشریف فرما ہے نادر گبول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. قومی اسمبلی کے ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف سے آفتاب صدیقی صاحب، آپ کا بہت شکریہ فار جوائننگ. اور دانیال چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اسلام آباد میں پاکستان مسلم لیگ نون سے، آپ کا بھی بہت شکریہ. آئی تھنک وی شوڈ اسٹارٹ ود سعودی ولی عہد کی جو وزٹ ہے پاکستان کا، اس پہ ایک طرح سے اپریشیٹ کرنا چاہیے موجودہ حکومت کو کیونکہ معیشت کے حوالے سے کافی کوشچنز آپ لوگ ریز کرتے ہیں. تو یہ والی بات مٹیریلائز ہو رہی ہے کہ سرمایہ کاری سعودی عربیہ سے آ رہی ہے، تو یہ خوشائن بات ہے. دیکھیں جی، بالکل خوشائن بات ہے. سعودی کے ساتھ ہمارے بہت ہسٹورک ٹائز ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک مسلمان کنٹری ہے اینڈ پرسیوڈ ایز لیڈر آف دا اسلامک ورلڈ بیکاز خانہ کعبہ بھی وہاں پہ، خادم الحرمین شرمین بھی وہاں پہ. مگر بات یہ نہیں کہ یہ مٹیریلائز ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. مٹیریلائز جو ہونا چاہیے تھا وہ تو نہیں ہو رہا ہے. جو عمران خان صاحب بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا مگر کبھی بھیک نہیں مانگوں گا، تو ابھی کیوں نہیں خودکشی کر رہے؟ کل آپ کو پتہ ہے وہ IMF کے حوالے سے ادھر بھی بیٹھے ہوئے تھے اور پورا پاکستان ابھی سوال پوچھ رہا ہے کہ بھائی آپ جب بولتے ہیں تب سوچ کے بولا کریں نا. ہم نے آپ کو کبھی نہیں بولا تھا کہ IMF سے پیسے نہیں لیں. ہم نے بھی لیا ہے، میاں صاحب نے بھی لیا ہے، کافی حکومتوں نے لیا ہے، مگر کم از کم اتنی بڑی بڑی باتیں تو ہم لوگ نہیں کرتے تھے. تو ابھی اخلاقی طور پہ آپ کے پاس کیا جواز ہے کہ آپ کوئی وکٹری کلیم کریں؟ اس پہ وکٹری نہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے اور ایکسپٹ کرنا چاہیے. اس پہ تو وکٹری کلیم کرنے تھے نا، 100 مارکس دیتے نا. کس چیز پہ؟ سعودی سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے. میاں صاحب نے نہیں لیا تھا سعودی سے انویسٹمنٹ، میاں صاحب نے بھی لیا تھا، ہماری حکومت نے بھی لیا تھا، مگر یہ ایک طرح سے ان کی پالیسی کا فیلئر ہے.
पाकिस्तान के लिए तो अच्छी बात है, पैसे आने चाहिए, मगर इनकी जो पॉलिसी थी कि हम किसी मुल्क से नहीं लेंगे, आप सऊदी आपको लग रहा है कि नहीं, सरमायाकारी तो फेलियर नहीं होता ना। नहीं, इनका जो नारा था, इनका जो एक आवाम को प्रॉमिस था कि हम किसी से पैसे नहीं लेंगे, उस सेंस में अगर आप देखें तो इनके लिए तो फेलियर है ना, पीटीआई के लिए फेलियर है। पाकिस्तान के लिए तो पैसे आ रहे हैं, वी नीड द मनी, कहीं से भी आ जाए, IMF से आए, अमेरिका से आए, मगर आपको लग रहा है सऊदी हमें मुफ्त में पैसे दे रहा है। इमरान खान साहब पहले जो बातें करते थे, ह्यूमन राइट्स इश्यूज इन यमन और ये सारे जो इश्यूज की बात करते थे, सीरिया में क्या हो रहा है, सऊदी आपको क्यों पैसे दे रहा है? वो आपको एक तरह से खरीद रहा है ना आपको, तो वो चाह रहा है कि आप एक तरह से उनकी जो पॉलिसीज है इन द मिडल ईस्ट एंड एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, उसको आप उसकी मुखालफत ना करें। तो जब अभी यमन में बमबारी होगी, वहां पे जब लोग बेचारे मारे जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे मारे जाएंगे, तब जब आप इमरान खान से पूछेंगे कि भाई आप सऊदी से पैसे, तो उन्होंने कहा कि हम सालसी का किरदार अदा करेंगे, आप भूल गए हैं, तो पैसे नहीं लेना फिर। अच्छा चले, पैसे नहीं ले। आप ये कहते हैं कि ठीक है, अच्छी बात है कि सरमायाकारी हो रही है, बट मौजूदा हुकूमत हैज नॉट स्टक टू इट्स वर्ड, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने कहा था कि हम कहीं से पैसे नहीं लेंगे, और IMF का भी आपने जिक्र किया। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, अच्छी बात है कि जब मुल्क में सरमायाकारी होती है, विच मीन्स कि सऊदी अरेबिया को मौजूदा हुकूमत पर भी एतमाद है और पाकिस्तान पर भी है। सो इतनी अप्रिसिएशन आपकी भी बनती है जो आप मौजूदा हुकूमत को दें। देखिए जी, आपकी आधी बात से तो मैं एग्री करूंगा कि पाकिस्तान के ऊपर हमेशा सऊदीया को एतमाद रहा और दुनिया के बहुत ममालिक को भी एतमाद रहा, लेकिन इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट जब हम बात करते हैं हुकूमत के एतमाद की, तो शायद वो हुकूमत का एतमाद जो है वो लैक करता है। और जब मैं ये बात करता हूं कि हुकूमत का एतमाद लैक करता है, वो इसलिए कहता हूं कि अगर सऊदी ने इन्वेस्टमेंट करनी थी तो तब करते जब पाकिस्तान के वजीर आजम सऊदीया गए, उनको रिक्वेस्ट किया, अपना कशकोल उठा के ले गए, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट नहीं आई। कुछ दिनों पहले एक ट्राइब्यून में और उसी तरह कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा हुआ था। वो आर्टिकल क्या कहता था, एंड हैज अ लॉट ऑफ रिलेशन विद दिस एंटायर सऊदी प्रिंस कमिंग टू पाकिस्तान। वो कहता था कि जो पाकिस्तान की अफगानिस्तान में सालसी का किरदार है, हमारी फौज का, हमारे इदारों का, उसके ऑल्टरनेट या उसके इफ्स सऊदी और UAE पाकिस्तान में एक इन्वेस्टमेंट करेगी, और वो उस इन्वेस्टमेंट का जो सालसी किरदार है वो करेगा अमेरिका अदा करेगा। और अमेरिका उनको रिक्वेस्ट करता है कि अराउंड $15 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, लेकिन वो डिफरेंट फेजेस में करेंगे। वो डिफरेंट फेजेस में इस तरह करेंगे कि जो चीजें आगे प्रोग्रेस होती जाएंगी, चीजें आगे चलती जाएंगी, तो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। तो जहां तक हमारा बयानिया है और हमारा ख्याल है कि यही उसी चीज को लेज ऑन करता है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रिलेशन, स्पेशली तालिबान का और अमेरिका का रिलेशन है, और इसमें हुकूमत का सालसी किरदार नहीं है। इसमें इधर हकीकत में पाक फौज और इंस्टीट्यूशंस जो हमेशा बड़े एक्टिव रहे हैं इस नेगोशिएशंस में, उनका एक रोल है, और ये क्रेडिट उनको जाता है, हुकूमत को अनफॉर्चुनेटली नहीं जाता। क्योंकि हुकूमत के पास इतने अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती और इतनी ज्यादा इनके पास स्पेस स्कोप होती, तो ये बहुत पहले आगे होते। जब पहले आके पाकिस्तान से UAE के भी इसी तरह क्राउन प्रिंस होके चले गए, सऊदी से भी पहले भी होके चले गए, तो इट इज अनफॉर्चुनेट। लेकिन ये जो अभी आ रहा है, ये इस तर्ज में आप इसको देख सकते हैं कि हमारे जो हम एज ए निगोशिएटर हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वो हमें अकोमोडेट किया जा रहा है। इसमें नो डाउट इट इज गुड फॉर द कंट्री, इट विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू द एंटायर इकोनॉमिक इम्बैलेंस। और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जब ये पैसा आएगा, कि जितनी इनकी नाअहली पिछले 6 महीने में एक्सपोज हुई, कि इसके बाद महंगाई की शरह में कमी आएगी, इसके बाद डॉलर की प्राइस शायद ये कंट्रोल कर सके, इसके बाद आगे मईशत को ये स्ट्रेंथन करें, स्टॉक मार्केट स्ट्रेंथन होगी, और फिर इनको शायद IMF की तरफ जाने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि जो अमाउंट की ये बात करते हैं, और ये खुद इनके वज़ीरा बार बार चढ़ चढ़ के कह रहे हैं कि सऊदी इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है, तो अब सऊदी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है एज अ कंट्री, तो आई थिंक कि फिर IMF को, इमरान खान को अपने बयानिए को जो डे 1 में था कि मैं उनके पास कभी भी नहीं जाऊंगा, उसके ऊपर स्टिक ऑन करना चाहिए, और फिर इसको देखना चाहिए कि आगे किस तरह लेके जा सकते हैं। अच्छा, तो आप समझते हैं कि IMF में अब जाने की जरूरत नहीं है इफ सऊदी अरेबिया इज गेटिंग यू $20 बिलियन? देखिए, $20 बिलियन इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कमिंग टू पाकिस्तान फ्रॉम सऊदी एट दिस पॉइंट। आप मिलके UAE और इसके एक्सपेक्ट करते हो एक बड़ी हैंडसम अमाउंट
आने वाले टाइम पे आ सकती है। और अगर एक हैंडसम अमाउंट आ रही है और आपको इस तरह मुल्क क्योंकि किसी तर्ज की किसी चीज की वजह से भी दे रहे हैं, तो आई थिंक कि अगर आपको जो सपोर्ट चाहिए आपको यहां से मिल रही है और आपने जो लोगों को जबा करने वाला, जो इकोनॉमी को जबा करने वाला काम शुरू किया है, वो शायद हुकूमत को नहीं करना चाहिए और IMF के पास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए वो स्टेरॉइड के इंजेक्शन ये काफी होगा कि अगर ये अपनी पॉलिसीज को दुरुस्त करने, so then you won't need to go to IMF. Okay, we won't need to go to IMF. Okay, आफ्ताब ये यूरो बॉन्ड्स की तरफ जाएं, पाकिस्तान के रोड शोज करें, तो आई थिंक ये हुकूमत को जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो ऑन फ्लाइट ट्रेनिंग की वजह से ऑन फ्लाइट ट्रेनिंग की वजह से मुझे लगता है कि ये फिर भी जाएंगे IMF के पास। अच्छा, आफ्ताब सिद्दीकी साहब, ऑपोजिशन को खुश करना बेइंतहा मुश्किल है। उन्होंने भी बता दिया कि ये बेसिकली बिकॉज हमारे टॉक्स में है, तो ये एक उसके लिए एवज आपको मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू, ये कितने बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है? अब तक कुछ फाइनलाइज है? बिकॉज कहीं 12 कोट होता है, कहीं 20 अरब होता है। देखिए जी, एक तो ये बहुत क्लियर बात कर लें कि रियासत जो है उसके अंडर में सारे इदारे हैं। ये जो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और फौज की, कि इनके थ्रू जो है ना ये सालिसी का सिलसिला चल रहा है और इसके तवस्सुत से ये हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमत का हिस्सा है। ये इनको समझना होगा और इसका इन्होंने नुकसान भी बहुत सारा इस मुल्क ने उठाया है, तो ये हम सबको समझना है। दूसरा ये कि इन्वेस्टमेंट और लोन में फर्क होता है। इन्वेस्टमेंट आती है जिससे प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है मुल्क में, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, आपका मतलब टैक्सेस जनरेट होते हैं, तो ये हमारे पर लोन नहीं आ रहा, ये इन्वेस्टमेंट आ रहा है। दिस इज बिटवीन 12 बिलियन टू 20 बिलियन के इन बिटवीन है, तो ये हमें समझने की जरूरत है। दूसरा ये कि इकोनॉमी जिस कंडीशन में, so that's why you say कि IMF इसलिए हम जाएंगे क्योंकि ये तो एक इन्वेस्टमेंट आ रही है। एक सिंपल से आप भी समझती हैं, इसमें तो उससे ताल्लुक नहीं। IMF के पास कौन जाना चाहेगा? हमने भी कहा था, ठीक है, मगर जिस कंडीशन में ये इकोनॉमी छोड़ के गए हैं, एक कैंसर ज़्यादा मुल्क छोड़ के गए हैं, आपकी डेट सर्विसिंग के ऊपर हमारे पैसे 2000 बिलियन का जाता है, उसके अलावा ये पेंशन तक खा गए। पीपुल्स पार्टी जिस वक्त 2013 में गई थी और 2018 में जब नून लीग गई है, तो बहुत जमीन आसमान का इनकी दोनों के उसमें फर्क था। हम तो पीपुल्स पार्टी को उस वक्त कहते थे 2013 में कि आपका इक्तिसादी सूरत हाल बहुत खराब थी। इस वक्त तो ये आप देखें कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो क्यों है। तो इसका मतलब नहीं, आप सही कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत जबो हाली थी, क्योंकि आप लोग ये फिगर्स कई दफा कोट कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपने आते के साथ सारी पॉलिसीज अपनाई, एक मिनी बजट तक भी लेकर आ गए, यानी 2 दफे रिफॉर्म पैकेज कह लीजिए आप इसे, दैट फेल्ड एंड दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू IMF। नो, ऑल द स्टेप्स फेल्ड। देखिए, बिकॉज ये था ना कि हमारे लिए बड़ा आसान था कि या हम IMF के पास फौरन चले जाएं या फिर हम कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीजें करें। हमें अगर हम फौरन चले जाते हैं, जैसे 2008 में 2013 में ये लोग गए, फिर विद इन कपल ऑफ मंथ, 1-2 महीने में लोग चले गए, IMF से पैकेज लिया है जिसका आज खामियाजा वो कर रहे हैं। IMF के पास हम भी जा सकते थे फौरन, और आज जाते तो उनकी कंडीशनलिटी जो थी वो आपको भी मालूम बहुत हार्श थी। सर वो तो आप लोगों ने कर दी ना। नहीं देखिए पहले कर दी। अगर हम 10-12 बिलियन का पैकेज लेते हैं तो उसकी सूरत हाल बहुत डिफरेंट होती, और अब अगर हम जा रहे हैं तो 2-2.5 बिलियन से ज्यादा के लिए नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने काफी अपने बिरादर मुल्कों से ये अरेंजमेंट्स किए हैं। सो IMF वाला जो होगा वो 2 से 2.5 बिलियन का होगा, तकरीबन लगभग यही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और इतना जब लिंगर ऑन आप करते हैं किसी भी नेगोशिएशन को, तो वो जो ना विन विन पोजीशन होती है, और जो हुई है। अब इत्तफाक की बात, जब वहां पे गए दुबई में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनके साथ भी उनकी प्रेसिडेंट की मीटिंग हो गई, तो और ज्यादा बेहतर हो गया। हम ये समझते हैं जो इक्तिसादी सूरत हाल जो हमें मिली थी और आज जमीन बहुत बेहतर है। आप देखें एक्सपोर्ट हमारी बढ़ गई है, 12% का इंक्रीज आया है बनिस्बत पिछले दौर के, और इससे आने वाले वक्त में बहुत बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। ओके, अब जब सऊदी वली अहद आएंगे और उसके बाद जो मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स होंगी, और जाहिर है कि जिस किस्म के मुआहदे किए जाएंगे उस पर तो तफसीली हम जब ही बात करेंगे। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूं, जो ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बना तो दिए आप लोगों ने खुद, और अब आप चाहते हैं वो मुस्ताफी हो जाएं। पहले ही पार्लियामेंट नहीं चलती, अब कैसे चलेगी जब ऑपोजिशन ने भी ये ठान रखी हो कि अगर ऐसा किया गया तो मामलात फिर बिगड़ेंगे ही। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड डिस्कस दिस।
वेलकम बैक। दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, आफ्ताब सिद्दीकी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और नादिर गबोल हैं हमारे साथ पीपल्स पार्टी से। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैन शहबाज शरीफ साहब, आप लोगों ने नहीं बनाना था, बना दिया, प्रेशर था, अब जब बन गए तो अब व्हाई बैक ट्रैक? पहले ही पार्लियामेंट के मसाइल इतने सारे हैं, अगर हटा दिए तो आपने देखा ऑपोजिशन तुले बैठी है कि करके देखें आप। देखें, फर्स्ट डे जिस दिन खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने, स्पीच नहीं करने दी और नून लीग के सारे लोग उनके इर्द गिर्द जमा होकर, मैं भी वहां पे गैलरी में बैठा था, मैं मेंबर नहीं था नेशनल असेंबली का, 1-1.5 घंटा शोर मचाते रहे। प्राइम मिनिस्टर को स्पीच नहीं करनी दी, एक नया ट्रेंड डाला, ठीक है। उसके बाद भी असेंबली में यही सिलसिला जारी रहा। असद उमर साहब ने अभी इकोनॉमी रिफॉर्म पैकेज दिया, उस दिन भी वो शोर होता रहा, जबकि सुबह स्पीकर के साथ ये डिसाइड हुआ था कि स्मूथली असेंबली का सेशन चलेगा। प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने फिर शोर करना शुरू किया। असेंबली तो चलने नहीं दे रहे। हमारा बिल्कुल ये कंसेंसस था कि एक ऐसे आदमी को जिसके नैब में केसेस चल रहे हैं उसको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। बहरहाल कुछ दिन जाए हुए, असेंबली 3-4 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा और फिर फाइनली हमने कहा चलें ठीक है, असेंबली का को चलाना है, ट्रेजरी बेंचेस की जिम्मेदारी है कि असेंबली को चलाएं, हमने ये बना दिया। मगर अब जब एक ट्रेडिशन एक कायम हुई कि हलीम खान साहब के ऊपर जब नैब ने उन्हें अरेस्ट किया तो उन्होंने फौरन रिजाइन दिया, तो हमें एथिकली भी देखना चाहिए कि एक पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन जो है वो नैब ज़दा है। अभी नैब में कैसे चल रहा है? अगर हलीम खान अरेस्ट ना होते और रज़ाकाराना तौर पर इस्तीफा ना देते तो ये तो एक नया ट्रेंड सेट किया ना, ये अब सबको करना पड़ेगा। अब जो है हालात ऐसे हो गए हैं कि हम सबको एथिकली चलना होगा, एथिक्स के हिसाब से चलना होगा, और ये एथिक्स कहती हैं कि इनको रिजाइन करना चाहिए। ओके, तो बस ये एथिक्स मुझे थोड़ी इसलिए हंसी आ रही है साहब माजरत के साथ कि ये क्या बात हुई कि अगर अलीम खान साहब करने ट्रेंड सेट करते हैं, ट्रेंड सेटर ना। नहीं, ट्रेंड सेटर के अलावा क्या शहबाज शरीफ साहब जो है नैब को बुलाते हैं, वहां पे इन्फ्लुएंस करते हैं, नैब के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उसके साथ तो सिस्टम तो नहीं चल रहा ना, असेंबली तो वैसे भी नहीं चल रही है। तो ये तो ठीक है, हमारी डिमांड है कि एक आदमी जिसके ऊपर नैब के केसेस चल रहे हैं उनको रिजाइन करना चाहिए। हमने बनाया था कि असेंबली को चलाने के लिए। रिजाइन क्या होगा? नहीं, ये तो हमारा मुतालबा है ना, तो ना करें तो एक डिफरेंट चीज है, उनको भी समझना है ना कि क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं चलानी। और ये कहना कि हम सिस्टम को जैम कर देंगे, कर लें, देख लीजिए, फिर अवाम का गुस्से से निपटेंगे ये लोग कि कैसे कर सकते हैं सिस्टम को जाम करके, देख लें, अपने ख्वाहिश पूरी कर ले। तो ये पहले ख्वाजा आसिफ साहब कर लें। जवाब दे दें। जी, इन्होंने बोला नैब को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो नैब को किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, फिर उसके बाद मैं अगर बोलूंगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलब करते हैं। यही बात तो अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ देर पहले एक तकरीब से खिताब करते हुए कही थी कि वो तलब करते हैं नैब को। अच्छा, और फिर इन्फ्लुएंस कैसे करें? जाहिर है जब आप तलब करेंगे, you're chairman of the public accounts committee, you're trying to pressurize them. अच्छा, मैं अगर देखिए विनीश, अगर अभी एक Can you imagine I'm like responding on behalf of Pakistan तहरीक इंसाफ ना हो। आप बताइए बैरिस्टर साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप? ट्रेंड सेट जो है, एक देखें, आप लोगों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को बताया कि ये एक ट्रेडिशन है, ठीक है, इसीलिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन ऑपोजिशन ने लाजिम बनना है, ऑपोजिशन लीडर ने। चले इन्होंने ये मान लिया, अब आप इनका ट्रेंड माने ना, वो रिवायत उन्होंने मानी। अगर वो ट्रेंड सिंध में नहीं है। अच्छा, अब वो मुझे आप 2 मिनट देंगे तो मैं इनकी बात का जवाब दूंगा। पहले नादिया, हमने हुकूमत को हमने ओथ लिया 5 जून को और हमने 12 जून को अपना बजट अप्रूव कराया और 4 जुलाई को और हमने अनाउंस किया कि हम IMF के पास जा रहे हैं। 4 जुलाई को हमने $6.4 बिलियन US हमने IMF ने दिया, ठीक है, और 16 जुलाई को हमने 4.83 बिलियन IPPs को उतारा, जिससे 2000 मेगावाट बिजली ऐड की। हम लोगों ने तमाम अपना होमवर्क हमने सीट पे आने से पहले किया था। आज 6 महीने की आप मुझे डिस्कशन बताएं, 6 महीने की इकोनॉमिक डिस्कशन ये किए है कि ऑपोजिशन लीडर कौन बनेगा, ऑपोजिशन लीडर कौन नहीं बनेगा, उसका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरपर्सन कौन बनेगा, उसके मेंबर्स कौन होंगे। ये 6 महीने में कमेटीज भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सके थे। ये है इनकी इनकॉम्पिटेंस और ये है इनकी हकीकत जो लोगों से वादे करते थे। यहां बात करते हैं आप शहबाज शरीफ को रिमूव करने की और एथिक्स की। मुझे ये एथिक्स का मतलब प्लीज मेरे इसके बाद लाजमी समझाएं। क्या एथिक्स वही एथिक्स है? ये वो लोग ये एथिक्स सिखा रहे हैं जो कहते थे पार्लियामेंट में हमला करो? ये वही लोग हैं जो एथिक्स सिखा रहे हैं जो कहते थे कि इस मुल्क को दिवालिया कर दो और हुंडी के थ्रू पैसा भेजो? ये लोग एथिक्स और मोरालिटी की बात करते हैं।
دیکھیں علیم خان اور ہاں دوسری بات آج انہوں نے ابھی پروگرام میں اس کوشچن کو پروب اس لیے کرنا چاہ رہا تھا, آپ نے جواب دے دیا. نیب کو انفلوئنس کرتے ہیں. نیب کو انفلوئنس کرنے کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایک ایڈمیشن ہے ان کی پارٹ میں کہ نیب انفلوئنس ہو رہی ہے. یہ آپ کے شو میں بیٹھ کے حکومتی نمائندے کیا ایڈمیشن کر رہے ہیں کہ نیب انفلوئنس ہو رہی ہے. ایسا ہی ہے اگر نیب پبلک اکاؤنٹس کے چیئرمین سے انفلوئنس ہو رہی ہے, جب آپ یہ جو ان کا اپنا ایڈمیشن ہے کہ اگر نیب پبلک اکاؤنٹس کے چیئرمین سے اگر انفلوئنس ہو رہی ہے تو مطلب نیب کا چیئرمین کمپرومائزڈ ہے, اور اگر چیئرمین کمپرومائزڈ ہے تو نیچے انسٹیٹیوشن بھی کمپرومائزڈ ہو گیا. So it is a very big thing that he's saying again and again, and I wanted him to be clarify کہ جب آپ ایک یہ آج نیب کے چیئرمین کے اوپر اس کی کلیریفیکیشن دے رہے ہیں نا بیرسٹر صاحب, جسٹ سیکنڈ. ہاں یہ آفتاب صاحب آپ کو دے رہے ہیں کلیریفیکیشن. دیکھیں یہ اپنی ٹرن میں دیں گے, پھر میں اگر فنش کروں تو لیٹ ہم گیو دا کلیریفیکیشن. لیکن نادیہ یہ نیب کے چیئرمین کے اوپر ہم نہیں یہ الزام آج لگا رہے ہیں کہ نیب کا چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ہیڈ سے انفلوئنس ہو گیا. جہاں تک دوسری بات ہے علیم خان کی, دیکھیں شہباز شریف کو لگایا انہوں نے, صحیح, عمران خان کے اپنے سگنیچرز کے تھرو لگا, بالکل. تب سینیریو کیا ڈیفرنٹ تھا اور آج سینیریو کیا ڈیفرنٹ ہے. تب بھی شہباز شریف جیل میں تھے, تب بھی کیس چل رہا تھا اور تب بھی یہی حقائق تھے. اگر آج ایک کوئی ڈیفرنس ہے تو وہ یہ ڈیفرنس ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نیب کے چیئرمین کو انفلوئنس ہو رہے ہیں. یہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ کمپٹنس ہے, کوئی اور مسئلہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ انفلوئنس ہو کے ہمارے بندے اریسٹ کر رہے ہیں. ہم چلیں ٹھیک ہے, آپ نے نیب کے چیئرمین کے اوپر آپ نے ایک کوسچن مارک ڈالا, وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. اچھا نیب کا چیئرمین جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بلاتا ہے, ایک چیز, اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بلاتا ہے تو وہ ٹھیک, وہ غلط ہے. لیکن سٹنگ پرائم منسٹر جو نیب کے اپنے کیس میں بھی ان کا اپنا بھی کیس چل رہا ہے اور ان کی بھی انکوائری چل رہی ہے, تو جب وہ ملتا ہے تو وہ غلط نہیں. تو جب یہ پبلک اکاؤنٹ چیئرمین کی ریزگنیشن کی بات کرتے ہیں تو پھر مورلز اور ایتھکس یہ کہتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر ان کو اکیلے 1-to-1 ملتا ہے اس کو بھی ریزائن کرنا چاہیے اور اس کے بعد ہمارا بھی استعفا پھر لے لیں. اگر یہ ہے, اگر یہ انہوں نے نئی شروعات کا آغاز کرنا ہے, وہاں ڈیفرنس کیا ہے کہ عمران خان اکیلا ملا, جہاں ہم نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین نے نیب کو پوری کمیٹی کے سامنے ووٹ تو نہیں ہے نا کہ جو آپ لگے ہوئے پچھلے 10 منٹ سے بات کر رہے ہیں اس کو موقع دیں. دیکھیں اب یہ سٹنگ پرائم منسٹر کو کمپیئر کر رہے ہیں ایک پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین سے, اور یہ ہمارا پوائنٹ یہی ہے کہ ایک نیب کا جو کیس ان کے اوپر چل رہا ہے اور نیب کے چیئرمین کو کیسے بلا سکتے ہیں. وہ پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب نیب کے چیئرمین کو بلائیں گے تو انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں گے. ہم نے یہ نہیں کہہ رہا میں کہ انفلوئنس کر رہا ہے یا انفلوئنس ہو جائیں گے, ان کو ہونے نہیں چاہیے. وہ ایک اٹانومس باڈی ہے, نہ گورنمنٹ سے ہونا چاہیے نہ اپوزیشن سے ہونا چاہیے. بلانے دیں پھر, کیوں بلائیں جب ان کا کیس چل رہا ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی بلاتا ہے بات ڈفرنٹ ہے, ان کا تو کیس نیب میں چل رہا ہے نا. ہمارا پوائنٹ آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم جو کہہ رہے ہیں, جو پارٹی بھی کہہ رہی ہے, پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں, ان کا کیس ہے, اس کے علاوہ کوئی بلاتا ہے تو ایک ڈفرنٹ چیز ہو جاتی ہے. بیسکلی پروبیبلی یور پوائنٹ از کہ کیونکہ ان پر کیسز ہیں تو انہیں چیئرمین نہیں ہونا چاہیے. ان کو تو ایتھکس کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. دیکھیں ایک سیکنڈ, میں آپ کے اس وقت نہیں بولا, ایتھکس تو انہیں کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. پناما کیس سے لے کے آج تک ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. ان کے پرائم منسٹر جیل میں چلے گئے, اس وقت بھی ایتھکس ان کے سمجھ میں نہیں آئی ہے. تو جی زلفی بخاری کا بھی کیس ہے. ہاں ٹھیک ہے نا, جس کا بھی کیس ہے اکراس دا بورڈ ہی چل رہا ہے نا. اور اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے اکراس دا بورڈ پناما کے اوپر, نہیں پناما نہیں, جو اکاؤنٹیبلٹی یہ بات کر رہے ہیں تو اکراس دا بورڈ چل رہا ہے, چاہے وہ نیب کے کوئی زلفی بخاری صاحب پہ ہو یا جس کے بھی, اکراس دا بورڈ چل رہا ہے. علیم خان صاحب کو انہوں نے اریسٹ کیا, پارٹی نے کوئی اسٹیٹمنٹ دیا, گورنمنٹ نے کوئی اسٹیٹمنٹ دیا, کچھ بتایا ہی نہیں کہ ان کی کتنی وہ ہے. میں تو یہ چاہتی تھی کہ آپ لوگ بتائیں. ہم نے ڈیفینڈ کیا, ڈیفینڈ نہ کرتے بتاتے تو نا. میں کیوں بتاؤں گا, مجھے کہ آپ کیوں جب اپوزیشن کے کسی کو اریسٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ آ کے سب بتاتے ہیں, آپ لوگ سب پریس کانفرنسز کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں. ہم آپ اس بات کو تو اپریشیٹ کریں, ہم نے ڈیفینڈ نہیں کیا, پارٹی نے کچھ نہیں کہا, گورنمنٹ نے کچھ نہیں کہا, جو ہے کیس چلے ٹھیک ہے. اگر ان کو سزا ہوتی ہے بالکل فبی اللہ, اور ان کو انہوں نے دیکھیں ایک اچھی. اچھا اب بات پارلیمنٹ پہ آ جاتے ہیں نا, ٹرینڈ کو تو بھول جاتے ہیں, لیکن بات ہے اب پارلیمنٹ کی, کیونکہ پارلیمنٹ میں ٹرینڈ سے ایتھکس سے چلنا ہے, ایتھکس سے چلنا ہے. تو which means you're going to remove, I don't know how you're going to remove. اگر ہو جائے گا تو بالکل ریموو ہو جائے گا. اس سے پہلے اچھا ٹھیک ہے, اب میں ان کو ایک چیز سمجھا دوں, میں بریک لینی ہے, مجھے بریک لینی ہے. اور کیا کہتے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ نادر جو ہے وہ ضرور اس میں پچن کریں, کیونکہ خورشید شاہ صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ وہ نہیں چلنے دیں گے, مطلب ایوان نہیں چلے گا اگر کسی نے بھی تحریک عدم اعتماد لانے کی کوشش کی لیڈر آف دی اپوزیشن کے خلاف. آج بڑی دوستی ہے
जबरदस्त किस्म का याराना लगता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और उसके बाद पूछेंगे कि इज दिस ऑन एथिक्स, इट्स ऑन ट्रेडिशन, व्हाट इट इज। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के हवाले से। नादिर गबोल साहब, ये मुझे बताइए कि खुर्शीद शाह साहब ने भी एक बड़ा लाइक फर्म स्टैंड ले लिया है पीपल्स पार्टी ने। जरदारी साहब भी इस हवाले से एक खुसूसी इजलास से सदारत करेंगे। फरमाइएगा, आप लोगों को भी लगता है कि हुकूमत ने कोई प्लान बना लिया है कि शहबाज शरीफ साहब को हटा दिया जाए इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से? हुकूमत ने तो शुरू से इनको आने नहीं दिया। ये तो हमने एक प्रिंसिपल स्टांस लिया था कि हमारी जो पिछली दो हुकूमतें थी रिस्पेक्टिवली नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, तो हमने एक रिवायत सेट की कि ऑपोजिशन से होना चाहिए था, बिकॉज ऑपोजिशन लीडर भी थे और ऑब्वियसली इनकी जो पार्टी है सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन पार्लियामेंट, तो बिल्कुल इनका हक था, इनको बनाया। और जो भाई कह रहे थे कि, और इनकी पार्टी भी कहती है कि मॉरल ग्राउंड्स पे इनको नहीं बनना चाहिए था, तो वेरी राइटली सो दानियाल साहब ऑल्सो पॉइंटेड आउट, और भी लोग लीडर्स कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी तो केसेस हैं, इनको भी आप नहीं बनाते। अलीम खान के खिलाफ ऑलरेडी केसेस थे, उसको आप मिनिस्टर नहीं बनाते। हमारे लिए आपने दूसरा स्टैंडर्ड रखा है, अपने लिए दूसरा स्टैंडर्ड रखा है। वो अरेस्टेड नहीं है ना? अरेस्टेड नहीं भी हो, मगर केसेस तो थे ना। नैब ने भी क्या बोला है? नैब ने ये बोला है कि वी फियर्ड दैट ही वुड हैव इन्फ्लुएंस्ड his investigation because he was a sitting minister, वो भी लोकल गवर्नमेंट का, he would have tampered with the records, तो हमने सोचा कि it's best to arrest him। नैब ने ये तो नहीं बोला ना कि शहबाज शरीफ या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैन ने हम पे प्रेशर डाला। और आफ्ताब भाई एक और बात कर रहे थे कि जी वो सब नेशनल असेंबली में गैलरी में होते थे, असेंबली में नहीं होते थे, जब हम लोग शोर शराबा करते थे। तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, ये उस वक्त भी नेशनल असेंबली के मेंबर नहीं होंगे जब इमरान खान साहब कंटेनर में खड़े होकर लानत भेजते थे असेंबली को। वो टाइम भूल गए? उस टाइम पे जब इन्होंने पूरा इस्लामाबाद का शट डाउन किया था, कितने कितने दिन, महीनों उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिस को। ठीक है, ये सारी बातें तो मेरे ख्याल से सबको याद है, बट इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐवान को चलना है। बिल्कुल चलना है, इसमें आप लोगों ने भी अपना शेयर डालना है इसको चलाने के लिए। हुकूमत की तो चले जिम्मेदारी है, तो ऑपोजिशन की भी है, बिल्कुल है। लेकिन अगर आप लोग जो कि यू स्टैंड बाय द पार्लियामेंट, तभी तो आप लोगों ने, जब ये लोग सब कह रहे थे इलेक्शन के बाद कि नहीं हलफ लेना चाहिए, आप लोगों ने सबको राजी किया गए। अब आप ही लोगों की तरफ से ये बात आए कि ऐवान को हम नहीं चलने देंगे अगर ये हुआ, डू यू नॉट थिंक दिस इज टू स्ट्रिक्ट अ स्टैंड? You have to understand the concept behind what the statement was. The concept is कि you don't interfere with the prerogative of the opposition. Opposition की अपनी मर्जी है भाई, जिसको भी हम opposition leader बनाए या chairman of the public accounts committee बनाए, उसमें अगर आप interfere नहीं करेंगे तो everything will be smooth sailing for you in the national assembly. But जो हमारा democracy में right है, जो parliament हमें जो right देता है कि जो आपकी policies के साथ हम agree नहीं करते, we have every right to walk out या assembly में शोर करें। हम कम से कम किसी third power को तो नहीं invite कर रहे ना, लानत तो नहीं भेज रहे हम assembly के। सही, तो अब ये आप समझते हैं कि बस ये हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है और ये होना चाहिए। बैरिस्टर साहब, बिकॉज आखिरी चंद मिनट है और आफ्ताब साहब आपकी बात पर जरूर रिस्पॉन्ड भी करेंगे। अब मुझे बिल्कुल इस तरह देखिए, एक दूसरे पर तो इल्जाम तराशी रहेगी, ना आप इनसे खुश रहेंगे ना ये आपसे खुश रहेंगे, लेकिन ऐवान को चलना है। डू यू नॉट थिंक कि आप लोगों को भी थोड़ा सा इस पर बैठ के इन लोगों से बात कर लेनी चाहिए? देखें, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हमें इनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए, और हमने पहले भी की और आगे भी करेंगे। देखिए, फर्क ये है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन जो है, ये मुझे अभी भी एक दलील दे के बता दे, कन्विंस कर दे क्यों हटना चाहिए, नंबर एक। और असल में ये बात है कि जब ये नाकाम होते हैं, जब इनके पास कोई बयानिया रहता नहीं है, जब ये देखते हैं कि मुल्क दिवालिये की तरफ है, जब ये देखते हैं कि ये पॉलिटिकली फेल हो रहे हैं। देखिए नादिया, इट्स अ बिग थिंग कि इनके 6 ओपनिंग बैट्समैन पहले 6 महीने में आउट हो गए। अलीम खान, जहांगीर तरीन, बाबर अवान, आजम सवाती और 2-3 और लोग हैं, आगे खटक साहब जा रहे हैं, फिर इनके और लोग जा रहे हैं। तो इनके पास और क्या बयानिया रह गया बेचने के लिए? लोगों के साथ जो वादे किए थे, जो चीजें की थी, उन पे तो डिलीवर 6 महीने में कर नहीं सके। तो यही बयानिया है जो इनको फेस सेविंग करेगा, ये फिर कॉन्फ्रंटेशन की तरफ। इनकी पॉलिटिक्स अगर आप इनको अंडरस्टैंड करें तो इनकी पॉलिटिक्स है कॉन्फ्रंटेशन वाली। हम आज भी इन हाउस की जब बात करते हैं, हम कहते हैं नहीं तो हम डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करते हुए इनसाइड पार्लियामेंट की बात करते हैं, लेकिन ये आज भी ये कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जाते हैं, लड़ने की तरफ जाते हैं। ये इनका वतीरा भी है और इनकी ट्रेनिंग भी यही है। और आप देखेंगे कि ये इनका सबसे बड़ा दुश्मन जो है ये खुद है, और ये अपने आप को रोज ऐसी बातें करके लोगों के सामने आके अपने आप को खुद डैमेज करते हैं। जब मैं घर जाता हूं तो लोग मुझे कहते हैं क्या प्रोग्राम्स करते हो रोज, क्योंकि यही टॉपिक है तमाम प्रोग्राम्स के, और लोग तंग आ गए इनकी बातों से। लोग कहते हैं कि भाई फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के ऊपर बात करो। नहीं, बिल्कुल, अब तो पॉलिसीज पे बात होनी चाहिए और आप लोगों की तरफ से बहुत कुछ आना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन होनी चाहिए।
पहले तो मैं इनके बात कर रहा हूं। जहांगीर तरीन साहब के ऊपर कोर्ट ने डिसीजन दिया, पार्टी ने डिफेंड किया नहीं किया। बाबर अवान साहब को जब मिनिस्टर बना रहे थे, केस हुआ, रिजाइन कर दिया। अलीम खान साहब का हुआ, रिजाइन कर दिया। आजम सौदी का रिजाइन कर दिया। तो ये जो हमें एथिक्स की बात कर रहे थे, मोरल की बात कर रहे थे, पहले तो हमें इस चीज पे आना है कि हमने इस मुल्क को एथिकली और मॉरली चलाना है। बाकी बात आ जाती है इक्तसादी सूरत हाल, जो जिस कंडीशन में ये देके गए, ये उसको डिफेंड ही नहीं कर सकते। ये आए, बैठ के बात करें इकोनॉमी के ऊपर, नंबर्स के ऊपर, क्या नंबर ये छोड़ के गए। इन्होंने जो सत्यानाश मारा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, जो ट्रेड डेफिसिट हुआ है, उसमें हमारी एक्सपोर्ट इसलिए गिर गई कि ड्यूटी ड्रॉबैक इन्होंने अनाउंस किया था, जो 5 साल में बढ़ते बढ़ते 3,000 अरब तक पहुंच गया। सुने आप इतना हालात इतने गंदे दिखाए शुरू से ही, हमें तो मिला ही इतना गंदा हालात नहीं, लेकिन आप बेहतर तो करेंगे ना। चलिए, इन्होंने तो बहुत बदहाली की। हम ये जानना चाहते हैं, आप लोग बेहतर करेंगे 5 साल में? हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, वो ठीक है, वो तो ब्रिटिश एयरवेज आ रही है यहाँ पे, मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट पहली दफा आई है जो कभी